English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning, guys. How are you? Hope you are the best in your health and spirit. Today we are going to learn a new chapter, Telegram. Telegram is a name known to everyone, every educated person in the world is aware of the telegram. What is telegram? So we'll learn here how telegram is written. Indian post office and telegraph. So Indian post office is attached with the telegraph department also. So in this way, and the students should also be aware of what the telegram is and how it was written and how and what happened to telegram nowadays. अभी तो इंटरनेट का एज है, लेकिन फिर at the certain period in history telegram was very important. It turned into telex now, but the thing is same as we go. तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक नॉवेल कैमूस, एल्बर्ट कैमूस ने लिखा था नॉवेल. उसका नाम था द स्ट्रेंजर. द स्ट्रेंजर नाम था और उसके ओपनिंग लाइंस थी, माई मदर डाइड टुडे और स्टरडे, आई कांट बी श्योर, बट द टेलीग्राम ऑफ माई हाउस सेज योर मदर पास्ट अवे, फ्यूनरल टुमारो, तो कम सून. तो द टेलीग्राम वाज सेइंग योर मदर पास्ट अवे, your mother passed away, funeral tomorrow, funeral tomorrow, come soon. So this was telegram. 3 lines are there. Your mother passed away, funeral tomorrow, come soon. So this is the telegram, not from Telegraph of India, but also from telegram which was sent in France, because this is the French novel The Stranger by Albert Camus. Also got the Nobel Prize for literature in that period. So your mother passed away, funeral tomorrow, come soon is a telegraphic message. It is called a telegraphic message. A telegraphic message. तो इसको हम बोलते हैं टेलीग्राफिक मैसेज. तो एट सर्टेन टाइम व्हेन we were bound to say something and there was no communication, the telegram was very much in function. For example, say it is in 1930, telegram was sent, your mother passed away, funeral tomorrow, come soon. ये टेलीग्राफिक मैसेज. तो हम देखेंगे कि टेलीग्राफ जो है क्या होता है. ये तो इंडियन पोस्टल और टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट से है रिलेटेड. तो प्रैक्टिस ऑफ डिस्पैचिंग टेलीग्राम हैज़ बिकम रादर रेयर. नाउ दिस टेलीग्राम is now no more in function, very much function. It has become telex. Telegram has now become telex, some moderate form,
we are now in 5G and other very fast speed of communication media. So that is one thing. Generally out of compulsion that one is prompted to send a telegram. So the situation of telegram was when there was some sudden catastrophe, sudden problem, and suppose this can be described when telegram is related with the sudden demise या sudden catastrophe, sudden मिसअप, कोई मर गया, कहीं कोई आग लग गई या कोई और भी कुछ हो सकता है। तो बहुत तरह जो सडन हो, एकाएक हो और आदमी मजबूर हो जाए कम्युनिकेट करने के लिए, तो उससे उसी समय में ये टेलीग्राम का ये हुआ, लोग यूज़ करते थे टेलीग्राम को। और इससे क्या होता था कि आदमी को तुरंत समाचार मिल जाता था और वो जो है उसके अनुसार काम कर रही। इसके बहुत से उदाहरण हम आपको देंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि टेलीग्राम में है क्या चीज़। तो ये आउट ऑफ कंपल्सन होता है और वन इज़ बाउंड टू सेंड a telegram, not in a very happy mood, but in somewhat terrified and somewhat fearful mood. क्योंकि जो भेजने की स्थिति होती है वो बहुत ख़राब होती है. Excess happiness is also there. Suppose you crack the IS examination and you send telegram to your father that you got through. So that is also, but nowadays telegram as we understand it is now not functioning because everyone has a phone cell and a smartphone, so that is not required. To all intents and purposes and all circumstances, under all circumstances, the telegram is common man's quick cheap mode of communication. Common quick mode of communication. तो पहले यही एक कम्युनिकेशन था जिसमें जल्दी से बेतार के और ये फ्लरिश किया इंडिया में. ये डिपार्टमेंट बहुत फ्लरिश किया. मेनी लेटर्स वेयर रिटन, मेनी टेलीग्राम्स वेयर सेंड, एंड इन आवर कंट्री सेपरेट डिपार्टमेंट इज देयर. The name of the department is telegraphic, yes, Department of Post and Telegraphs, of Departments of Post and Telegraph. तो अभी भी इसका काम होता है, ये फंक्शन होता है. तो yes, तो cheap mode of communication was cheapest mode, I say that quick and cheapest mode of communication was a thing. तो and then students give special attention in the mood sending telegram, and the passion and the what we call emotion involved in sending telegram to someone. So students should learn it. My point is that we all know about the telegrams. तो इसमें होता है फर्स्ट सेट ऑफ डिटेल्स होता है, इसमें क्लास होता है, फॉर्म में ही लिखा रहता है. देयर इज़ अ फॉर्म यू कैन गेट इट फ्रॉम इंडियन पोस्टल. तो टेलीग्राम के उसमें क्लास लिखा रहता है. ऑर्डिनरी क्लास है कि एक्सप्रेस क्लास है, ये भरना होता है. इसके बाद टाइम, ये टाइम देना पड़ता है. तो टाइम में जो टाइम इसमें दिया जाता है वैसे टाइम दिया जाता है. क्लॉक आवर का टाइम, क्लॉक आवर का टाइम में जैसे कोई दिया है 14 आवर्स, तो 14 आवर्स में ये क्लॉक टाइम बराबर हो गया
12 के बाद जो है 12 के बाद ये 24 घंटा का होता है, 24 आवर्स का होता है। क्लॉक आवर्स जो है 24 आवर्स होता है और 14 आवर्स में ये 14 आवर्स बराबर हो जाएगा कि 2 AM पहुँचना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसमें टाइम दिया रहता है और यस और ये टाइम इसलिए लिखा जाता है कब टेलीग्राम कब स्टार्ट हुआ, व्हेन इट वाज बुक्ड। तो टाइम फॉर डिपार्चर व्हेन इट वाज बुक्ड। आप कब किसी को Telegram is very sensitive thing. When you start sending it and you expect that it is soon received by the sender and you are satisfied. So this kind of thing is that because तो डिटेल्स में इसका लिखने का बुक मैंने इतने बजे जो है आपको टेलीग्राम भेजा, इतने देर में आपको मिल गया, तो उसका मतलब होता है, मीनिंग होता है। तो दैट इज। और टेलीग्राम का नंबर, सीरियल नंबर रहता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस सीरियल नंबर से टेलीग्राम भेजा गया। और ऑफिस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से भेजा जा रहा है, टेलीग्राम जहाँ से भेजा जा रहा है वो भी, और उसे कोड क्या है उसको भी। और कोड में क्या होता है, शहर का कोड क्या है जहाँ से वो भेजा जा रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर टू बी डिटेल्ड। और वर्ड्स का मतलब होता है जितने वर्ड्स जो है हम उसमें लिखेंगे। तो रिमेंबर दैट द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वर्ड्स वी आर यूजिंग इन टेलीग्राम। जो वर्ड्स हम टेलीग्राम में यूज करते हैं वो 15 से 20 के बीच में होते हैं, 15 से 20 के बीच में होते हैं। इसी बीच में इंक्लूडिंग सेंडर का नाम भी 15 से 20 वर्ड्स। और फिर ये मैक्सिमम जा करके वो 25 वर्ड्स तक जा सकता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये इतना ही इसका है। तो एवरी वर्ड इज काउंटेड इन टेलीग्राम, एवरी वर्ड इज काउंटेड। एंड नंबर भी कैसे काटते हैं, 1 is 2 3, तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड्स आप ऐसे भी लिखोगे 1 2 3, वो भी एक ही वर्ड गिना जाएगा, ये भी एक ही वर्ड गिना जाएगा। तो और इसी तरह से जो शब्द भी जो लिखते हैं वो भी जो है, अगर वो हाइफन में है कोई शब्द, तो जैसे पोस्टमैन, तो अगर ये हाइफन में है तो उसको एक ही वर्ड गिना जाएगा, और नहीं तो ये 2 वर्ड्स गिना जाएगा। तो इन टेलीग्राम द काउंटिंग ऑफ वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ टू बी चार्ज। ये वर्ड्स जो है इस पर चार्ज लगता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज गिवन हाउ दीज वर्ड्स आर चार्ज। तो टाइम हमने बताया कि ये क्लॉक आवर्स होता है, और टेलीग्राम नंबर होता है जो बॉडी ऑफ द मैसेज। तो बॉडी ऑफ द मैसेज में बहुत छोटा होना चाहिए। बॉडी ऑफ द मैसेज, जो आप मैसेज लिख रहे हैं टेलीग्राम में, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, आउटफुली स्मॉल। जैसे आप देखें 15-20 के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जा सकता है, इसके बाद वो लेता नहीं है। तो अधिकतम मैक्सिमम 25। इसमें इंक्लूडिंग सेंडर्स नहीं, इंक्लूडिंग टू whom you are sending। यस, वर्ड रेंज जो होता है 10 से 15 होगा, इंक्लूडिंग सेंडर्स नेम।
सेंडर नेम्स को लेने के बाद भी 15 तक ही होना चाहिए, और एट मोस्ट टेलीग्राम कैन कंटेन 25 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें रिसिपिएंट एड्रेस भी होगा और मैसेज सेंडर का नाम भी होगा, इंक्लूडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 25 होना चाहिए। एंड योर वर्क इज़ एवेल्युएटेड फॉर ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। आप इसमें डिपेंड करता है कि आपने जो भेजा है वो चीज़ में बहुत क्लैरिटी हो और क्या हो, ब्रेविटी हो, शॉर्ट में हो, क्लियर हो, सारा चीज़ समझ में आ जाए क्यों भेजा जा रहा है। और उसमें स्टॉप होता है, स्टॉप का मतलब होता है फुल स्टॉप। ये क्योंकि ये पंक्चुएशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ऐसा है कि विदाउट पंक्चुएशन भी टेलीग्राम एक्सेप्ट किया जाता है। ये इसमें है कि विदाउट पंक्चुएशन यू पंक्चुएट इट विथ ए फुल स्टॉप एंड यूज द वर्ड स्टॉप। इसका एक वर्ड होता है। तो पंक्चुएशन किया जाता है। इसके कई पंक्चुएशन के आभास में एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन क्या होता है। सी टेलीग्राम इज ए हिस्ट्री आई मे से, लेकिन वी हैव बीन थ्रू द टाइम ऑफ टेलीग्राम। पहला टेलीग्राम वंस आई माई फ्रेंड सेंड मी a telegram, and then he wrote this flood not coming. He was working with me and he wrote a telegram and sent to the principal saying flood not coming. So we could understand that in his area there is a flood, that is why he is not coming. But the principal was telling that it should not be the way he should write. Flood not coming means flood is not coming. Actually there should be one stop here, there should be punctuation, one stop here, and only then the meaning would come correct. Flood not coming, due to flood he is not coming, that is what he wanted to say. But if you omit punctuation, of course without punctuation telegram was accepted. So only 3 words are there. Flood not coming, what does it mean? It means flood not coming matlab is that area drought, or someone is expecting flood? No, because of flood someone is not coming, that is the point. So this was not clear. So this point should be taken into consideration कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो और उसका मतलब निकल रहा है। जैसे और भी हम देखते हैं कुछ इस तरह के जो चीज़ें हैं कैसे लिखा जाता है। तो टेलीग्राम जैसे आप लिखो, एक सिचुएशन है जिसमें there is a train accident and the services cancelled and then unable to attend conference, sorry. तो इसमें स्टॉप कई जगह लिख दिया गया। तो स्टॉप का वी शुड अंडरस्टैंड, स्टॉप मतलब होता है one stop वर्क एज पंक्चुएशन। जैसे ऐसे लिखें कि ट्रेन एक्सीडेंट, one word. Second is services cancelled.
Actually, it should be written in bold. For example, cancelled I have written in running English. तो रनिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, इसको लिखना चाहिए कैंसिल्ड। Services cancelled, train accident, services cancelled, and then unable to attend conference, unable to attend conference। ठीक है, और लास्ट में लिखा कि सॉरी, ये चीज है। अब इसके अगर ऐसे लिखा जाता है ट्रेन एक्सीडेंट, सर्विसेज कैंसिल, अनेबल टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, सॉरी, तभी काम चल सकता था, तभी काम चल सकता था। लेकिन इसने बीच पे स्टॉप लिखा, यहाँ स्टॉप है, फिर यहाँ स्टॉप है, फिर यहाँ स्टॉप है, फिर यहाँ स्टॉप है, फिर यहाँ स्टॉप लिखा। तो ये हिज जेंटलमैन दैट ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड एंड ही वाज गोइंग टू अटेंड कॉन्फ्रेंस एंड बिकॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट सर्विसेज कैंसिल्ड, he could not get other thing, buses or other ways, so therefore he was unable to attend conference. For all that he begged sorry, यहाँ पे सॉरी लिखा है। तो ये जेंटलमैन वर्ड्स, लेकिन इससे भी छोटा हो सकता था। ट्रेन एक्सीडेंट, अनेबल टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बट यू कैन गिव द मनी फॉर, इट्स ओके, इट्स ओके। इससे भी छोटा करने की कोशिश किया जा सकता था, आपको करके देखना। और एक बताते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई बीमार है और हॉस्पिटल में है और किसी को बुलाना चाह रहे हैं, कोई बीमार है, जैसे मदर, कुछ भी लिखते हैं, सिक, अब इसमें अगर कामा दें एंड स्टॉप कर दें, हॉस्पिटलाइज, कम सून, ये हो जाए, दिस विल वर्क। तो मदर सिक, हॉस्पिटलाइज, कम सून। मदर इज वेरी सीरियस, शी इज इल, शी इज इन हॉस्पिटल, देयरफॉर यू आर आस्क्ड टू कम सून एज पॉसिबल, डू कम, ऐसे भी होता। तो ये है शॉर्ट, जितना भी आप ब्रेविटी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, और क्लैरिटी भी होना चाहिए। पहले जैसा नहीं कि जैसे फ्लड नॉट कमिंग, फ्लड नॉट कमिंग में क्लैरिटी नहीं था, और फिर उसको जहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर आपको स्टॉप दे देना चाहिए या उसको कर, लेकिन अगर आपने कॉमा भी नहीं दिया है, स्टॉप भी नहीं किया है, तो फ्लड नॉट कमिंग का मतलब होता है फ्लड इज नॉट कमिंग, या उसको और दूसरे ढंग से समझा जा सकता है, समवन इज वेटिंग फॉर फ्लड। तो ये एम्बिगुअस है। इसके पहले वाला जो मैंने बताया टेलीग्राम कि योर मदर पास्ट अवे, फ्यूनरल टुमारो, कम सून, ये सही था, ये 3 लाइन में था, 2 वर्ड का, ये सही था। और एक और देखते हैं, नेक्स्ट वीक एग्जाम्स स्टॉप, बिल्स पेंडिंग,
send 3000, otherwise cannot take exam. अब जैसे पहले हम लोगों को या अभी भी होता है, जब शॉर्ट में अगर कुछ चीज़ लिखना है कि आप अपने पेरेंट्स से पैसा मंगाना चाह रहे हैं, उसमें ये भी देना चाह रहे हैं कि किस वजह से आपको पैसा चाहिए, तो आप अगर उस सीरियसनेस को समझते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन एग्जाम्स स्टार्ट mess will not pay examination start send 5,000 else fail to appear एग्जाम, फेल टू अपीयर भी लिख दीजिए। एग्जाम जैसे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और आप में फीस जो है वो 5,000 नहीं क्लियर किए हैं, तो रूल इज दैट अनलेस यू क्लियर ऑल ड्यूज यू कैन नॉट अपीयर एट एग्जामिनेशन। सो एग्जाम्स स्टार्ट मेस विल नॉट पेड और सेंड ₹5,000 एल्स फेल टू अपीयर एग्जाम। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि आप किस वजह से आप जो है पैसा मंगा रहे हैं, पैसा किस वजह से मंगा रहे हैं और पैसा न देने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दैट यू हैव ऑलरेडी ट्राइड टू राइट इन द टेलीग्राम। So guys, these are the things which I just went regarding the Telegram. Telegram is now not in practice, but things may be come at certain period of history. It was very much in function, and people used to write out of compulsion. So हाइपरनेटेड वर्ड जो है हाइफन रहता है, तो उसमें नहीं होता। LIC अगर लिखा LIC 3 लिखा है, तो अगर ये काउंट किया जाएगा तो 3 वर्ड काउंट किया जाएगा। लेकिन LIC सटा करके लिखा गया है, तो उसका एक कंपनी माना जाए तो उसको जो है 1 वर्ड चार्ज होता है। ऐसे इसमें लिखा है पोस्ट ऑफिस एंड फॉर द चार्ज पोजीशन, तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस जो है उसके लिए सर्टेन रूल्स बने हुए थे, इंस्ट्रक्शन बने हुए थे, जिससे तो इस तरह से ये ह्यूमन प्रायोरिटी टेलीग्राम की हमारे हम मैन इज सोशल एनिमल एंड ही वांट्स टू कन्वे समथिंग टू हिज गार्जियन और द nearest and dearest living far or near. So this telegram was one of the media through which we send or convey message to our nearest and dearest. So that was how telegram was used in past, and likely also it becomes relaxed. So then internet also will work, but since communication has become very easy
in these days, so nobody talks about Telegram, but Telegram still is a matter to study. So that's all for today. Thank you very much.